ಜುಲೈ 16, 1948ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತು ಮಸೂದೆಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು NCC ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ NCC ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಯುವಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಸಂಗತಿ. NCCಯು ದೇಶದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಶಿಸ್ತು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮೊದಲಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ನರ್ಸರಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. NCC ಎನ್ನುವ ಅನನ್ಯವಾದ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಊರಿದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಚಿತ್ತಾರದತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸೋಣ. जवाब दे, परवाह न कर, हिसाब ले, ऐसा निभा फर्ज तेरा के देखता जहां रहे के पता चले दुनिया को भी क्या बात है ये देश में। जो भी जुर्रत कर जाए टकराने की वो ही पाएगा मौत की कब्र में खुद का। बदले की जो आग है गलती नहीं हमारी, पहले किया तुमने वार है। भुगतोगे तुम इसके लिए, छोड़ेंगे ना किसके लिए, घर में घुस के मारेगा ये नया हिंदुस्तान है। देश मेरा मेरी माँ है, मेरी जान है, मेरी हाथ न लगाना दूर हो जा साले माँ की तेरी। ऐसा करके क्या तुझको लगता है जन्नत जाएगा, मेरी बात याद रखना दोज़ख ही तू पाएगा। जो भी जुर्रत कर जाए टकराने की वो की कब्र में खुद का। नया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।
Since 1963, we have two units, NCC Army and NCC Navy. All the best. NCC is so proud for BCK. All the best. ಹೌದು, ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ NCC ಘಟಕಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಡಾರ್ಕಸ್ ಕಾಲೇಜು 1963ರಲ್ಲೇ NCC ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲಿಗರೆನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ನೇವಿ ನೌಕಾದಳ ಎಂಬ 2 ಘಟಕಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. 55 ವರ್ಷಗಳ NCC ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟನೆಗಳು, ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳು, ವಿಸ್ಮಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಗಣನೀಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರವು ಒಂದೊಂದು ಕಥನಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನಡೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ, ಜಗ್ಗದೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಹಿಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ, ಭಾರತ ಖಂಡದ ಹಿತವೇ ನನ್ನ ಹಿತ ಎಂದು, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮತವೇ ನನ್ನ ಮತ ಎಂದು, ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸುತರೆ ಸೋದರರು ಎಂದು, ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮುಕ್ತಿ ನನಗೆಂದು ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡೊಂದನ್ನು, ರಸದ ಬೀಡೊಂದನ್ನು. ಹೊಸ ನೆತ್ತರು ಕುಕ್ಕಿ ಆರಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ, ಹರೆಯದಿ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಮಾಟ ಮುಸುಳುವ ಮುನ್ನ, ಉತ್ಸಾಹ ಸಾಹಸದ ಉತ್ತುಂಗ ವೀಚಿಗಳ ಈ ಶುದ್ಧ ಸಾಗರವು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡೊಂದನ್ನು, ರಸದ ಬೀಡೊಂದನ್ನು. సరిహద్దున నువ్వు లేకుంటే కను పాప కంటి నిండుగా నిద్రపోదురా నిలువెత్తున నిప్పు కంచెవై నువ్వుంటేనే జాతి బావుగా ఎగురుతుందిరా, పైకెగురుతుందిరా. ఇల్లే ఇండియా, దిల్లే ఇండియా, నీ తల్లే ఇండియా, తన భరోసా నువ్వే దేశం కొనక. సెలవే లేని సేవక ఓ సైనిక, పనిలో పరుగే తీరిక ఓ సైనిక, ప్రాణం అంత తేలిక ఓ సైనిక, పోరాటం నీకో వేడుక ఓ సైనిక. దేహంతో విడిపోయింది కథ, దేశంలో మిగిలుంటుందిగా. సమరం పొడిలో నీ మరణం, సమయం తలచే సంస్మరణం, చరితగా చదివే తరములకు నువ్వో స్ఫూర్తి సంతకం. వస్తులు లెక్క పెట్టవే ఓ సైనిక, పుస్తలు లక్ష్య పెట్టవే ఓ సైనిక, కష్టి దుస్తుల సాక్షిగా ఓ సైనిక, ప్రతి పూట నీకో పుట్టుకే ఓ సైనిక. బతుకిది గడవదు అని నువ్విటు రాలేదు, ఏ పని తెలియదు అని నీ అడుగిటు పడలేదు. తెగువగు ధీరుడివని, బలమగు భక్తుడని, వేలెత్తి ఎలుగెత్తి భూమి పిలిచింది నీ శక్తిని నమ్మి. దిల్లే ఇండియా, దిల్లే ఇండియా, దిల్లే ఇండియా, దిల్లే ఇండియా, నీ తల్లే ఇండియా, తన భరోసా నువ్వే దేశం కొనగా. నువ్వు మండే భాస్వరం ఓ సైనిక, జ్వాలా గీతం నీ స్వరం ఓ సైనిక,
की रेप्पल कायाले बन जा रे तू जवान। अब हर धड़कन कहे जन गण मन बस बन जा हरदम तू ही जवान। अब हर धड़कन कहे जन गण मन बस बन जा हरदम तू ही जवान। तुझ में है दम बढ़ा ले कदम बस बन जा तू ही जवान हो। కష్టం వస్తేనే కలలను కథ చేస్తా ఎదురెళ్ళి రక్కసి మన తీసే సమరంలో ఇక తన మన తనువున జనగణమన చేసే అనుకుందే తక్షణమున చూసే లక్ష్యాన్ని తీక్షణమున సత్యం అను నిత్యం నీ భుజమున నిలుపుతూ జనగణమన। ఇంటికి ఒక్కడు కావాలే జంగుకి సయ్యని తూకాలే కంటికి రెప్పలే కాయాలే బంజారే తూ జవాన్। రోజు నీకో యుద్ధమురా రాజీ పడితే వ్యర్థమురా జవాన్ జవాన్। జెండా నీలో ధైర్యమురా జయమే దానికి ధ్యేయమురా జవాన్ జవాన్। నడు యౌవని కొరకిక వెదకకు పదవురకెత్తే తెగువకు నువ్వెగురు పడు పిడుగుకి వెరవక జడవక పదను పుట్టిన మట్టికి ప్రాణమిడు చూపించే దంతో కాలికదం బస్ పంజా తూ హి జవాన్ హో। కష్టం వస్తేనే కథలను కథ చేస్తా ఎదురెళ్ళి రక్కసి వద తీసే సమరంలో ఇక తన మన తనువున జనగణమన చేసే అనుకుందే తక్షణమున చూసే లక్ష్యాన్ని తీక్షణమున సత్యం అను నిత్యం నీ భుజమున पहले నిలుపుతూ बात करते हैं జనగణమన। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर क्या है। तो हम आपको बता दें कि एनसीसी एक ट्रायंगुलर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर स्कूल और कॉलेजेस के अनुशासित और देशभक्त युवाओं को उनके भविष्य के लिए नेतृत्व प्रदान करते हैं। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी, लेकिन एनसीसी को सबसे पहले जर्मनी में सन 1666 में शुरू किया गया था। 1948 में एनसीसी सिर्फ 20,000 छात्रों के साथ शुरू हुई थी और मौजूदा समय में इस ऑर्गेनाइजेशन में 13 लाख से भी ज्यादा छात्र शामिल हैं। एनसीसी का प्रमुख उद्देश्य देश के युवाओं में कैरेक्टर, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सेक्युलर हैबिट्स यानी धर्मनिरपेक्ष आदतें और सेंस ऑफ एडवेंचर का विकास करना है। एनसीसी में युवाओं को ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस को एज अ करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि एनसीसी के कैडेट्स आगे चलकर इंडियन आर्म फोर्सेस को अपने हुनर और कुशल परीक्षण से मजबूती प्रदान कर सकें। एनसीसी समूह का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर करता है और स्टेट लेवल पर एनसीसी को 17 हेड ऑफिस में बांटा गया है। एनसीसी का मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और देश में इसकी टोटल 788 यूनिट्स हैं, जिसमें 667 आर्मी की, 60 नेवी की और 61 एयरफोर्स की यूनिट हैं। एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन, जिसे 23 दिसंबर 1957 में अपनाया गया था और अपने लिविंग मोटो के मुताबिक एनसीसी देश की ग्रेटेस्ट कोहेसिव फोर्सेस में से एक है जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवाओं को एकजुट करता है और उन्हें देश के लिए एकजुट, धर्मनिरपेक्ष और अनुशासित नागरिक में ढालने का काम करता है। तो चलिए बात करते हैं कि एनसीसी को ज्वाइन कैसे किया जाए। तो हम आपको बता दें
कि एनसीसी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कैडेट्स को पूरे देश से हाई स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से चुना जाता है। एनसीसी में 2 डिवीजन होते हैं, पहला जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग और दूसरा सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग। वैसे तो आम तौर पर लगभग हर स्कूल में एनसीसी के लिए कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन अगर आपके स्कूल या कॉलेजेस में ये कोर्स उपलब्ध नहीं है तो आप अपने स्कूल या कॉलेज से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर नज़दीकी स्कूल जहां ये एनसीसी कोर्स कराए जाते हैं वहां अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि एनसीसी की जूनियर डिवीज़न के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट 13 से 18.5 साल के बीच में होनी चाहिए और सीनियर डिवीज़न के लिए आपकी एज लिमिट 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो एनसीसी की जूनियर डिवीज़न के लिए क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक के छात्र अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप सीनियर डिवीज़न के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप क्लास 10 के बाद इस डिवीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि एनसीसी के लिए मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। एनसीसी के जूनियर डिवीज़न का टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन 2 साल का होता है, जबकि इसके सीनियर डिवीज़न का टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन 3 साल का होता है, जिसमें आपको 3 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। पहले साल में ए सर्टिफिकेट, दूसरे साल में बी सर्टिफिकेट और तीसरे साल में सी सर्टिफिकेट। और हम आपको बता दें कि इन तीनों में सी सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए बात करते हैं कि एनसीसी को ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपका ड्रीम इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है तो हम आपको बता दें कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए एनसीसी कैडेट्स को एक स्पेशल एंट्री के थ्रू चुना जाता है। यानी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एनसीसी कैडेट्स के लिए एक स्पेशल एंट्री होती है जिसके लिए केवल एनसीसी कैडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको उच्च शिक्षा हासिल करने में एक रिजर्वेशन भी मिलता है। और इन सब के अलावा एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स को इंडियन आर्मी के सीडीएस और एनडीए जैसे एग्जाम्स में रिटन एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और हम आपको बता दें कि एनसीसी कैडेट्स के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 64 वैकेंसीज और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 100 वैकेंसीज रिजर्व रहती हैं। और एनसीसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस की ग्रेट लाइफ को जीने का अनुभव मिलता है। हम आपको बता दें कि हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनसीसी के छात्र रह चुके हैं। तो अगर आसान भाषा में कहा जाए तो एनसीसी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के युवाओं में एकता और देशभक्ति की भावना को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतवर्ष एक ऐसा नाम जिसे मन में सोचने मात्र से रग रग में जोश व हिम्मत भर जाती है। लहलहाते खेत, ऊंचे हिमालय, कलकल करती नदियां भारत की पहचान है। भारत अपने निडर व बहादुर जवानों का सदैव सम्मान करता है, जो बिना डर बिना भय के भारत माँ की सेवा करते हैं। देश के नौजवानों को लेकर जाता देशभक्ति के मार्ग की ओर देश की निरंतर सेवा में जुटा है राष्ट्रीय कैडेट कोर। जी हाँ, भारत के सपूतों को, नौजवानों को देशभक्ति व देश सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता है भारत का एक ऐसा युवा संगठन जिस पर हर भारतीय को गर्व है। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठित एवं दृढ़ इरादों के लिए प्रसिद्ध युवा संगठन है। एनसीसी का आरंभ 1666 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के आदेश पर 1946 में पंडित एच.एन. कुंजूर के अधीन एक समिति बनाई गई और इसके तहत 16 जुलाई 1948 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एनसीसी के 31वें एक्ट को पास कर एनसीसी का आरंभ किया गया। कभी गौर से देखिए, एनसीसी का चिन्ह स्वर्ण रंग में लाल, नीला व हल्का नीला रंग नजर आता है। लाल रंग थल सेना, गहरा नीला रंग जल सेना व हल्का नीला रंग
वायुसेना को दर्शाता है। नेशनल कैडेट कोर पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट वर्ग को एनसीसी के बेसिक प्रिंसिपल्स पे ट्रेनिंग देने में तत्पर है। एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन बच्चों को एक डाइवर्स एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए और कंस्ट्रक्टिव सिटीजन बन के रहने में मदद करता है। एनसीसी ग्रुप जालंधर की 6 बटालियंस हैं, 5 आर्मी की और 1 एयरफोर्स की, जो कि तकरीबन पंजाब के 4 जिलों को कवर करती हैं: जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर एवं नवा शहर। एनसीसी ग्रुप जालंधर में तकरीबन 13,942 कैडेट्स हैं, जो कि इस ग्रुप का हिस्सा हैं। NCC Group Jalandhar has got 6 units. 3 are located in Jalandhar and 1 each at Fagwada, Kapurthala and Hoshiarpur. अनुशासन जीवन का अभिन्न अंग होता है। अनुशासन ही जीवन में जीत को सुनिश्चित करता है। इसी अनुशासन को युवाओं में भरता है एनसीसी। कि मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में थे और उनका ये सपना था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। सो जो एनसीसी है वो एक गुड प्लेटफॉर्म है आर्मी में जाने के लिए। I want to join NCC because I want to become an Indian Army officer. आपसी मेलजोल व भाईचारे की भावना को और मजबूत करने के लिए एनसीसी कैडेट्स के लिए कैंपों का आयोजन किया जाता है, जहां उन्हें साथ मिलकर रहने, मिल बांटने व दूसरों की मदद करने की ट्रेनिंग दी जाती है। I get to know how to work with unity and how to take care of others. Those my juniors and my batchmates, how to take care of them and how to motivate them for hard work. मेरा यहाँ पे सेकेंड ईयर है और ये बहुत ही अच्छा मंच है जहाँ हम कुछ सीख सकते हैं और बाकियों से अलग हो सकते हैं। बाकियों से डिफरेंट बनाता है हमें एनसीसी। यहाँ पे हमें पीडीपी क्लासेस और फिनिशिंग क्लासेस लगवाई जाती हैं जो हमारे पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं और हमें बाकियों से अलग बनाती हैं। एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी ने अगर मैं देखूं तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, एक सिंपल लड़का था जो उसको एक बदल के एक अच्छे इंसान की तरह, एक वेल मैनर्ड एंड वेल डिसिप्लिन्ड बॉय की तरह चेंज कर दिया। कैडेट्स को छोटे हथियार चलाना, राइफल खोलना, बंद करना, मॉडल्स बनाना आदि सिखाया जाता है। जो युवा भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए कॉलेज जीवन में एनसीसी उत्तम माध्यम है। एनसीसी में युवाओं को अनुशासन, निडरता और निर्भय होना सिखाया जाता है। Our basic aim is to make them more confident and more responsible citizens of our country. प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों से उत्तम कैडेट्स को चयनित करके गणतंत्रता दिवस की परेड में शामिल होने का मौका दिया जाता है, जिसे एनसीसी कैडेट्स के जीवन का मील पत्थर माना जाता है। इतना कुछ हमें मिलता है एनसीसी से, लाइक यू विल गो फॉर आरडीसी, जो कि हम क्या कहते हैं, हम टीवी पे देखते हैं जो आरडीसी दिल्ली की परेड होती है 26 जैन की, वहाँ पे हमें मौका मिला जाता है कि हम वहाँ पे जाके परेड करें। एरो मॉडलिंग एयर विंग की एक गतिविधि है। इसमें कैडेट्स को एयरक्राफ्ट की सभी कंट्रोल्स एवं पैनल्स के बारे में बताया जाता है। कैडेट्स को एयरक्राफ्ट मॉडल्स उड़ाने का सुअवसर भी प्रदान करता है एयर विंग।
Vayu Sena camp, we have a Thal Sena camp, we have a rock climbing camp, we have a leadership camps, we have an annual Republic Day camps, we have a PM rally camps, we have a adventure camps. एनसीसी जहां बहादुरों को देश सेवा के लिए प्रेरित करती है, वहीं समाज में सृजनात्मक कार्यों के लिए भी सक्षम बनाती है। जालंधर एनसीसी ग्रुप ने सामाजिक गतिविधियों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आइए आपको इनसे अवगत करवाते हैं। यातायात के नियम सड़क पर उतरने वालों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। एनसीसी जालंधर ग्रुप द्वारा समय समय पर यातायात नियमों के संबंध में वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाता है। इन वर्कशॉप्स में एक्सीडेंटल सिचुएशंस के बारे में भी बताया जाता है एवं फर्स्ट एड की महत्वता के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाती है। कैडेट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया जाता है। आज हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर रोड पर लोगों को चलने के सिद्धांत बताए। सबसे पहले तो हमें ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाइड किया, तो फिर रोड पर आके हमने लोगों को गाइड किया। जालंधर एनसीसी ग्रुप द्वारा डिजिटलाइजेशन को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न डिजिटल इंडिया वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को पेटीएम्स व खरीदारी के बारे में बताया जा सके। भारत को स्वच्छता पूर्ण बनाने हेतु एनसीसी जालंधर ग्रुप द्वारा अनेक स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। कैडेट्स द्वारा वातावरण को हरा भरा रखने व साफ सफाई करने हेतु लोगों को वीडियोस द्वारा भी जागरूक किया गया है। भारत संपूर्ण विश्व में योग का प्रतिनिधित्व करता है। कैडेट्स के अभिभावकों द्वारा इन योग शिविरों में गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। गांव किसी भी देश की आत्मा होते हैं। इसी मंत्र को आत्मसात करने के उद्देश्य से एनसीसी जालंधर ग्रुप की बटालियंस द्वारा गांव को गोद लिया गया है। गांव के लोगों को उनके फर्जों व दायित्वों के बारे में समझाया जा सके। हर एनसीसी बटालियन ने 2 गांव को गोद लिया हुआ है, ताकि देख रेख का काम बेहतरीन व तसल्ली बख्श तरीके से किया जा सके। बहुत ही ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ 12 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओवरऑल हमारी चेष्टा ये रहती है कि हर कैडेट को जो एनसीसी ज्वाइन करके हमारे पास आया है वेरिड एक्सपोजर दिया जाए, ताकि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो और वो आगे चलकर हमारे इस देश का एक अच्छा नागरिक बनकर अपना योगदान कर सके।
मंच मिले हैं, जिसमें एनसीसी में रहते हुए हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जिससे आज मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है डांस में। My main aim is to get the information from unit staff members to civilian members to forward timely information to this headquarters. Here we can compile all this information and forward to NCC directed timely. इस प्रकार से एनसीसी देश के युवा वर्ग एंड स्पेशली इस रीजन के युवा वर्ग को डेवलप करने में अपना दायित्व निभा रही है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में इस एरिया के बच्चे एनसीसी ट्रेनिंग हासिल कर देश सेवा में तत्पर रहेंगे और अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम, जालंधर ग्रुप का नाम और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करेंगे। जय हिंद। सांसों में आंधी है, मैं भी तो तैयार हूँ। सबसे बड़ी ये जंग है, तो मैं भी तैयार हूँ। आगाज हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, हर हार जीतेंगे। मैं हूँ वो आग जो कभी बुझे ना। मैं हूँ वो रफ्तार जो कभी रुके ना। मैं shine.